So, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab to all my eminent community members. A very good evening and a hearty welcome. I, Deepak Srivastava, welcome you to another learning session organized by the PSI, the Public Speaking Institute community, with a vision to bring eminent speakers from different fields who can add value to your life by sharing the knowledge and situations they have been through using the power of communication. I would like to witness the energy we are filled with being in PSI community, and let us unmute ourselves and give us ourselves a thunderous applause. Now, may I request you to please add guest to your name before your name if you are invited to attend this session. And before we proceed, let me introduce you to the mission, vision, and objective of our PSI, the Public Speaking Institute community. The mission of PSI is to create 1 million public speakers by the year 2030. The vision of PSI is to have at least one public speaker in every home who can inspire the family. The objective of this community is to promote public speaking, presentation skills, effective communication, storytelling, etc. Skills which can help you to become a master in your field. And I take pleasure to inform you in that in wonderful PSI community, we have professional speakers, public speakers, anchors, authors, coaches, trainers, influencers, startup business owners, professionals, educators, and many more. Before I start, I would like to express my sincere gratitude to Author Sherry Sir, the visionary founder and managing director of Public Speaking Institute community of around 2.5 lakh public speakers around the globe, and is also pioneering to give India its very first public speaking university. Wow. He is a well known international public speaking coach and mentor and has created 15,000 plus public speakers and is on a mission to create 1 million public speakers by 2030. This is also the mission of PSI community all too. He is also the founder and president MS Talks India, a public speaking international platform given to 20,000 plus public speakers across the world, and is 7 times international TEDx speakers, 3 times Josh Talk speakers, and author of international bestsellers. So may I request everyone to please unmute themselves and let us give a big round of applause to Author Sherry Sir, the founder and managing director of our Public Speaking Institute. Thank you very much. And now let's come to the topic of the today, that's relationship. Well, in the early days of my life, I did not know why the term relationship is called relationship. Now, as I have grown up, and today, before the session, while I was thinking about it, I tried to break the relationship into two words, relation with ship. Now, relation is something where we connect, not contact, connect. And ship is basically the way how we are sailing into the connection. So relationship is your journey in which you are not just traveling, you are connecting and inspiring each other as well. So let us hear more from the super excited, eminent personality with us, Ms. Vipul Gupta, and she is going to enlighten us on the topic of the day. And let me tell you a little more about her. She is not just a relationship expert, she is also a woman empowerment coach and a motivational speaker too. She was blessed with the honor of winning the public speaking competition held by the MS Talks in year 2020. That was very close. So please join me and let's give a big round of applause to Ms. Vipul Gupta and learn from her more on relationships. Vipulji, stage is all yours. Thank you very much. Thank you so much, दीपक जी. आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया और मैं PSI कम्युनिटी को भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने आज मुझे प्लेटफॉर्म दिया और इनवाइट किया है एज ए स्पीकर.
और सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपने को अपना कैमरा ऑन कर ले, क्योंकि मैं चाहूंगी कि अब जब मैं रिलेशनशिप पे बात करने जा रही हूँ तो सब मेरे साथ जितने भी हम लोग हैं वो बन के रहें। तो प्लीज 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 टर्न ऑन योर कैमरा गणेश प्लीज। जी, सतेंद्र जी, आनंद जी, जयप्रीत जी, सर प्लीज लाइव आ टर्न ऑन जाइए। योर कैमरा रिलेशनशिप में हम कनेक्ट करते so हैं एक दूसरे को। so that I can connect with you all. या Yeah, Bani, Satinder ji, Anand ji, Terry sir. Hi Vipul, how are you? Hi Deepak. I'm good, सर, sir. कम So let's start. या Yeah. जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आज बात करने वाली हूँ रिश्तों के बारे में। रिश्ते जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं। एक रिश्ता हमारा इस कम्युनिटी से भी है। वी आर द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। ये हमारी PSI फैमिली है। रिश्ते हमारे दिल से जुड़े हुए होते हैं। रिश्ते वो हैं जो हमें सौगात में मिलते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो कई रिश्तों के साथ आता है धरती तक। रिश्ता अपने माँ बाप के साथ, रिश्ता भाई बहन के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, बुआ मौसी, कितने ही रिश्ते लेके आता है। बट एक रिश्ता ऐसा है जो कहा जाता है कि बना तो भगवान तभी देता है जब आप इस धरती पे आते हो, बट आपको मिलता समय आने पे है। तो आप में से कौन बताएगा मैं किस रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ? Who will tell me? Yes, दीपक जी, of course. आप शायद पति पत्नी के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। आज मैं बात करने जा रही हूँ जिस रिश्ते के बारे में, वो है पति पत्नी का प्यार से भरा हुआ, नोक झोंक से भरा हुआ, थोड़ी प्रॉब्लम से, थोड़े सॉल्यूशन से, खट्टा मीठा रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। तो आई वांट टू Am I audible? यस यू आर। There is an error. आर्ट ऑफ रिलेशनशिप। मैं आज बात करूंगी रिलेशनशिप की आर्ट के बारे में। रिलेशनशिप एक आर्ट है, इसको जीना एक कला है। हम सभी रिश्ते में हैं, किसी ना किसी रिश्ते में हैं। हम शादी के रिश्ते में हैं, पति पत्नी का रिश्ता जो होता है। अगर हम अनमैरिड हैं तो भी हम कई बार हमारा रिश्ता होता है हमारी गर्लफ्रेंड के साथ, हमारे बॉयफ्रेंड के साथ। तो इस रिश्ते में जब हम जीते हैं ना, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। और इस रिश्ते को जीना एक आर्ट है। मैं इस रिश्ते को जीने को आर्ट क्यों कहती हूँ, इसे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हु इज विपुलन गुप्ता। कौन है ये विपुल जो आज बात कर रही है रिश्ते के बारे में, जो रिश्तों को अपने दिल में उतारती है, जो मानती है कि रिश्तों के बिना हमारी जिंदगी है ही नहीं। अगर रिश्ते नहीं हैं तो शायद हम किसी भी सक्सेस की ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं। एक अकेलापन रहता है। क्यों मैं बात करती हूँ रिश्तों के बारे में, तो आप में से आप मुझे बताइए कितने लोगों को स्टोरी सुनना पसंद है? यू कैन रेज योर हैंड। तो ठीक है, शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने बारे में बताऊंगी एक स्टोरी से। हो सकता है आप मेरे बारे में पहले भी जानते हो, बट हो सकता है कुछ लोग यहाँ नए हो जो मेरे बारे में नहीं जानते। तो क्यों ना शुरू किया जाए मेरी स्टोरी के साथ। मैं भी वो लड़की थी जिसकी जो लाइफ थी ना, वो भरी हुई थी ड्रीम से। अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी।
मुझे ऐसे लगता था कि जो जिंदगी है ना वो भगवान ने बनाई है जीने के लिए, खुशी के साथ जीने के लिए। ये इतनी खूबसूरत है, रंगों से भरी हुई है, बहुत प्यारी है। हर समय खुश रहना, अपने सपनों में जीना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट कहते हैं सब कुछ एक साथ नहीं रहता। मेरी लाइफ में भी सब कुछ एक साथ नहीं रहा। कम एज में मेरी शादी हुई, और जब शादी हुई तो मुझे लगा हो सकता है यही मेरा फ्यूचर हो, यही मेरा प्रेजेंट हो, इसी से मुझे सब कुछ मिले, खुशियाँ जो मैं चाहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उस रिश्ते में मैंने एंटर करा तो मैंने ऐसे लाइफ पार्टनर को पाया जो लाइफ पार्टनर कम लाइफ पे होल्ड करने वाला इंसान ज्यादा था। उसे नहीं अच्छा लगता था कि औरतें घर से बाहर जाएं, अपने ड्रीम को जिए, ज्यादा पढ़े लिखे, हर चीज में इंटरफेयर करे। उन्हें सिर्फ पसंद थी एक हाउसवाइफ, कि अगर एक औरत हाउसवाइफ है तभी वो एक अच्छी औरत है। जो औरतें घर से बाहर जाके काम करती हैं वो अच्छी औरतें नहीं होती है। बट रिश्तों का मान रखते हुए मैंने ये एक्सेप्ट किया। मैंने हाउसवाइफ की जिंदगी को एक्सेप्ट किया। समय बीतता गया और इसी बीच आई वॉज ब्लेस्ड विद टू बोन्स, मेरी बेटी और मेरा बेटा। अब मुझे लगा कि हाँ, जिंदगी में सब कुछ है मेरे पास। अब जो जिंदगी कटेगी वो अच्छे से कटेगी। सपनों को मैंने अपने जीना सोचना सब कुछ छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से चीजें बिगड़ती गई। मेरे हस्बैंड ने यहाँ से कमाना बिल्कुल बंद कर दिया। डेली शराब पीना शुरू कर दिया। मार पिटाई शुरू कर दी। मैंने जानती उसके पीछे क्या रीजन था, क्यों वो इतना परेशान रहने लग गए थे घर को लेकर। लेकिन उनको घर से उन्होंने कटना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया। उन्हें अब जब भी कहा जाता कि आप घर पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, तो हमारे घर में बहुत ज्यादा कलेश होता, मार पिटाई होती। इस चीज का असर मुझ पे तो पड़ ही रहा था, बट मेरे बच्चे क्या देख रहे थे? मेरे बच्चों पे भी इन चीजों का असर पड़ने लगा। इस चीजों को बर्दाश्त करते करते जब 8 साल हो गए तब मैंने डिसाइड करा कि अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे इससे मूव ऑन करना है, हटना है, टॉलरेट नहीं करूंगी। देन मैं अपने बच्चों को लेके अलग हुई। मैंने अपनी विमेन पावर को पहचाना, मदर पावर को पहचाना, और इसे मिक्स करते हुए एक सुपर वुमेन के रूप में मैं सामने आई। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ लाइफ में कमी है, क्योंकि मैं रिश्तों को बहुत ज्यादा अहमियत देती थी। मुझे लगता था मेरी जिंदगी में लाइफ पार्टनर की जरूरत है। हर इंसान एक सा नहीं होता, ये मेरी सोच थी। लेकिन जब भी मैं इस बारे में बात करती किसी से, चाहे वो अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड से, तो मुझे एक ही बात कह के चुप करा देते हैं कि अगर एक हस्बैंड से आपको खुशी नहीं मिली तो दूसरे हस्बैंड से भी आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। अगर एक लाइफ पार्टनर बेकार होता है तो दूसरा लाइफ पार्टनर भी बिल्कुल बेकार होता है। तुम्हें सुख मिलना होता तो पहले मिल जाता, आगे जाके तुम्हें सुख शायद नहीं मिलेगा। बट मुझे इस सोच की चैन को तोड़ना था। मैंने वेलकम किया अपने लाइफ पार्टनर का अपनी जिंदगी में, और इस सोच को तोड़ा। पर आपको क्या लगता है इतना आसान था मुझे सेकंड अपनी मैरिज में एंटर करना? यहाँ भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, अलग तरह की प्रॉब्लम थी। यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, मेरे इन लॉज ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव 2 किड्स। उन्हें लगता था कि उनके घर में अगर 2 बच्चे आ जाएंगे तो अगर उनसे एक बेबी होगा उसे कहाँ जगह मिलेगी। मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहना शुरू कर दिया कि आपकी वजह से हमें बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत चीजें कहनी शुरू कर दी, जिनसे वो धीरे धीरे लगता था कि अब कटने लगे। बट वही मुझे समझ आया कि हर रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, जरूर होती है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सुधारा जाए, कैसे इसे अपने फेवर में लाया जाए, ये एक आर्ट है। यही से मैंने रिलेशनशिप की आर्ट को समझा, हर चीज को समझा, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिए, बात करी, कम्युनिकेशन अपना बढ़ाया, हर किसी को प्यार से मैंने समझाया। और आज मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो ये एक आर्ट है। आप भी, आप में से यहाँ कितने लोग मैरिड है? ऑलमोस्ट सभी। तो मैं जानना चाहूंगी किसी भी एक इंसान से कि आपके लिए रिलेशनशिप क्या है। कोई भी, आपके लिए रिलेशनशिप क्या है?
अनम्यूट करके कोई भी मुझे आंसर कर सकता है। नोबडी? कोई भी Everyone, you सब can please कोई सब रिश्ते में है, आप रिश्ते stop. को परिभाषित क्या करते हो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू यू? सुपर, सुरेश जी, बनीश, एनीवन? ऐसा तो सुन रखा है 7 जन्मों का सफर पता नहीं कितना सच है। नहीं, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू? शादी, रिश्ता, यही दैट इज द रीजन हम नहीं जानते एक्चुअली रिलेशनशिप है क्या। एक परिभाषा किसी ने दी, हम उसी परिभाषा में बहते चले गए, समझते चले गए। जब हम शादी करते हैं तो क्या देखते हैं? लड़का कमाता क्या है, लड़की की हाइट क्या है, रंग कैसा है, घर कैसा है, बैंक बैलेंस है, कार है। क्या ये देखते हो कि आप जिस लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ने जा रहे हो वो आपकी थिंकिंग के साथ, आपकी हैबिट के साथ मैच करता है? क्या आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करते हो कि मुझे अपने रिलेशनशिप में अपने लाइफ पार्टनर से क्या चाहिए? नहीं करते। रिश्तों की परिभाषा नहीं जानते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज? शादी के बारे में क्या सोचते हो? क्यों करने जा रहे हो शादी? इंडिया में मोस्टली शादी ही इसलिए होती है क्योंकि हमारी एज हो गई है शादी की। कोई हमसे नहीं पूछता आप शादी के लिए रेडी हैं? आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं, आप अपनी हर चीज को बांटने वाले हो। आर यू रेडी? ये कोई नहीं सोचता, कोई नहीं पूछता है। इज इट ट्रू? अब मैंने इन चीजों के तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं इसका आंसर आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगी क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है। विपुल, आई एम सॉरी इंटरप्ट किया है, पीपीटी में कुछ आ नहीं रहा है। इज इट द केस विद मी और इज इट विद एवरीवन? पीपीटी में कुछ नहीं आ रहा है दीपक जी? हाँ मैम, पीपीटी में कुछ नहीं आ रहा। अरे इट्स अ बताना। ब्लैंक स्लाइड कंप्लीटली। ओके, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। वेट। आपकी बातें इतनी एंगेजिंग थी कि पीपीटी की तरफ जाने नहीं किया। नहीं, आप अभी बताना। आ रहा है अब? अभी नहीं। अब पीपीटी विजिबल है? आ रही है यार। विजिबल है? हाँ विजिबल है। आप म्यूट हैं विपुल जी। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे दिख रहा है आर्ट ऑफ रिलेशनशिप। व्हाट इज द रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू यू? बट मुझे नहीं अब दिख रहा है। हाँ जी Okay. मुझे दिख रहा है। तो What do ये you think मेरे about marriage? क्वेश्चन से आपसे सॉरी, ये मेरे क्वेश्चन से आपसे पहला, व्हाट इज रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू यू? देन बनीत ने आंसर दिया था व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू हैप्पी इन योर मैरिज लाइफ? बट मुझे आपसे इसका आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए। आप इसका आंसर प्लीज ऑनेस्टली अपने को देना। आर यू हैप्पी? हैप्पीनेस ये नहीं कि हाँ बहुत खुश हो गए, नहीं, सेटिस्फाई है, मैं मैरिड हूँ, मेरी जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर है एंड आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन में रखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम पार्ट रिलेशनशिप का होता क्या है। कोई भी मेरे साथ शेयर करेगा क्योंकि मुझे सीखना भी है, मुझे सिर्फ बताना नहीं। तो कोई भी
एक एक पॉइंट सभी मुझे बताएं कि क्या क्या पार्ट होता है। हाय गौरव। Expectations. एक्सपेक्टेशन, ओके। प्रॉब्लम पार्ट, सबको एक एक बताना है। थैंक यू गौरव। दीपक जी। मैं कहूंगा, एक्सपेक्टेशन तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ, बट ये कहूंगा कि ओवर पावर करने की एक कोशिश रहती है कि वो भी चाहते हैं कि मैं सही हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं सही हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सतिंदर जी। सतिंदर जी, I think anybody can unmute and then answer for the question. मतलब मैं बार बार नाम लूंगी, that is not okay. Mainly, I think it's ego issues in couples. I Okay. think mainly that is the base, I think, and from there all it's the a rise for other problems. Great, great. Thank you, Banesh. Super Suresh ji. My relationships are so good, so I even don't think about it. Not in your relationship. It's a common problem. We are talking about common problem. I'm really not aware of it. Okay, thank you. So let's start. देखते हैं क्या क्या problem part हमारी relationship में होता है. The first is lack of communication. लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या आता है, बोलना सुनना दोनों आते हैं, बट हस्बैंड को हमेशा यही शिकायत रहती है मेरी बीवी बहुत बोलती है सुनती नहीं है, और वाइफ को हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि मैं जब भी बोलती हूँ मेरे हस्बैंड सुनते नहीं है। अब जब दोनों सुनते नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ है? इसका मतलब दोनों ही नहीं सुनते हैं, कम्युनिकेशन गैप है। एक दूसरे को जो हम सुनना बताना चाहते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को ध्यान ही नहीं देते, बहुत लाइटली लेते हैं, केयर नहीं करते। मानते हैं कि आज का टाइम ऐसा है कि टाइम नहीं है इतना ज्यादा एक दूसरे से स्पेंड करने के लिए, बट केयर की कमी है, इमोशंस की कमी है। आप में से अभी रिसेंटली या लास्ट टाइम अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को आपने आई लव यू कब कहा था? वो पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, अपने को आंसर दे दो। और अगर नहीं कहा था तो फोन उठाओ और अभी मैसेज करो, अभी मैसेज करो, मुझे देखना है क्या रिस्पॉन्स आता है। व्हाट्सएप कर दो। आज रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की हम क्लास कर रहे हैं, तो हमें स्टेप उठाने शुरू करने पड़ेंगे। आप करो, देन देखो क्या रिप्लाई आता है। ये एक टास्क है, फटाफट फटाफट, टाइम कम है हमारे पास। मुझे सबके हाथ में फोन चाहिए, सब आई लव यू का मैसेज भेजेंगे आज और फोन को रख देंगे और देखेंगे नहीं कि रिवर्ट बैक क्या आया। लैक ऑफ इमोशंस, इमोशंस नहीं है, हम प्यार से बात नहीं करते हैं, इमोशंस को जाहिर नहीं करते हैं, दूसरे के इमोशंस को समझते नहीं हैं। बहुत बड़ी कमी है रिलेशनशिप की, शर्माते हैं कहने में। होता है ऐसा? वो बोल रही है पी रखी है क्या? अभी नहीं, अभी नहीं, ये जोक था गौरव। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं सामने वाला चाहता क्या है, समझना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? आई डोंट नो व्हाई। लैक ऑफ अटेंशन, कितनी अटेंशन देते हो आप? कई बार तो ये होता है वाइफ सज के भी या हस्बैंड खूब बन के भी सामने आते हैं, देखते ही नहीं है पहना भी क्या, अटेंशन ही नहीं देते हैं। और जहाँ ये चीजें स्टार्ट हो जाती है ना, कम्युनिकेशन नहीं है, केयर नहीं है, इमोशन नहीं है, वहां पे प्यार की कमी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये पिलर है लव के। क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं। यहाँ एक किस्सा छोटा सा शेयर करूंगी। एक लाला जी थे, उनकी किराने की दुकान थी, तो उनके वाइफ को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी उनसे, आप टाइम नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो। मैं बोला मैं 9 बजे घर आ जाता हूँ, 11 बजे दुकान खोलता हूँ, पूरा टाइम तुम्हारा है, क्या टाइम नहीं देता मैं तुम्हें? अब इस बात पे आ गया, सेठानी जी को गुस्सा बोली, आते हो तो माता जी के साथ बैठते हो अपनी, थोड़ी देर में हिसाब किताब लेके बैठ जाते हो, उसके बाद मोबाइल लेके बैठ जाते हो, खाना खाते हो, खराटे मार के सो जाते हो, सुबह 10 बजे उठते हो, नहाते हो, पूजा करते हो, चले जाते हो। मैं कहा हूँ आपकी लाइफ में? तो लाला जी सोचने पे मजबूर हो गए।
क्योंकि टाइम तो सब देते हैं, क्वालिटी टाइम देखकर कहाँ देते हो बताओ। कि अगर ये 1 घंटा या आधा घंटा मैं रोज दे रहा हूँ तो उसमें नो फोन, नो डिस्टरबेंस, नो टीवी, नो बुक, सिर्फ तुम और मैं। क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी है, दे के देखना। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की कमी है इंडियन फैमिलीज में, तो ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि वाइफ से गलती हुई नहीं देखते कि क्या कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, एकदम डांट देते हैं। और वहाँ वाइफ कैसे रिस्पेक्ट नहीं करती, उसी समय फोन मिलाएंगी घर वालों को, और मेरे हस्बैंड ऐसे, मेरे हस्बैंड ऐसे, मेरे हस्बैंड ऐसे। रिस्पेक्ट ही नहीं है। बहुत जरूरी है रिस्पेक्ट करनी। और उसके बाद एक दूसरे पे गलतियां डालना, तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं, मैं हर जगह सही हूँ। अपने को सही साबित करने पे लगे हुए हैं, क्या केस लड़ा जा रहा है कोई। शेयरिंग, फ्यूचर प्लान करते हो आप, कोई भी प्लानिंग करते हो, आप कितना शेयर करते हो, खुद बताइए कितना शेयर करते हैं। क्या वाइफ है क्या हस्बैंड है, शेयर करते ही नहीं है। अपनी फीलिंग तक तो शेयर नहीं करते, क्योंकि पता है कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं। आएगा भी तो वो ऐसा रिस्पॉन्स आएगा कि बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि हमें बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है। एंड साइन क्या होते हैं फिर अनहेल्दी रिलेशनशिप के? साइन होते हैं आर्ग्यूमेंट। अब ये नोटिस करते जाना, किसी की रिलेशनशिप में है, मुझे बताने की नीड नहीं है, बट अब नोटिस करना आर्ग्यूमेंट होता है उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा। समझने की बजाय बहस, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट होती है। सही भी बोल रहा है इंसान, बोला कि उसने डिसरिस्पेक्ट, ब्लेमिंग ईच अदर, डिप्रेशन। पता क्या है, इंसान प्यार का भूखा है। ये रिश्ता तो बना ही प्यार से है, और जब प्यार नहीं मिलता ना तो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन में जाता है। एक ही इंसान, दोनों नहीं, एक इंसान ऐसा हो जाता है जिसे बहुत ज्यादा इमोशंस, प्यार की, केयर की जरूरत है, और जब नहीं मिलता तो वो अकेलापन महसूस करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और अपनी जिंदगी से धीरे धीरे प्यार खत्म हो जाता है। स्ट्रेस, एक्सट्रीम टेंशन, और इसके बाद फिजिकल वायलेंस। क्यों होती है फिजिकल वायलेंस? जब हम बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं ना किसी चीज को, हमें ये चाहिए, हमें तुमसे प्यार चाहिए, मुझे तुझसे अटेंशन चाहिए, कम्युनिकेशन मुझे चाहिए, मेरे पे ध्यान दो, मेरी बात को सुनो, बहस होने लगती है। और जब ये एक लेवल क्रॉस कर लेती है तो वहां पे हाथ भी उड़ जाता है, फिजिकल वायलेंस वहां शुरू हो जाती है। और जब घर की ये सब बुनियादें हिलने लगती है ना, प्यार की बुनियादें हिलने लगती हैं, तब लैक ऑफ इंटीमेसी, हस्बैंड अलग वाइफ अलग, कई बार अलग मुंह करके सो जाते हैं, कई बार कमरे ही अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर वही है, इंसान प्यार का भूखा होता है। यहाँ वो कई बार गलती कर बैठता है, और गलती कर बैठता है तो वो क्या करता है, मैरिटल अफेयर, डिसऑनेस्ट। अब जब बिलीव नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, बेस ही खत्म हो गया, ऑनेस्टी ही खत्म हो गई, तो रिश्ता डिवोर्स की कगार तक भी पहुंच जाता है। ये अनहेल्दी रिलेशनशिप के साइन है। अगर इनमें से कोई भी साइन किसी को लगता है हमारी रिलेशनशिप में है, तो बहुत जरूरी है उसके लिए एक्शन लेना। अब अगर ये अनहेल्दी रिलेशनशिप है तो उसके रीजन क्या है? कोई बताएगा उसके रीजन क्या है? नोबडी। रीजन वही है जो प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम थी वही रीजन है। कम्युनिकेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रीजन ही जड़ है। आपको समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम ही इसके रीजन है, प्रॉब्लम ही जड़ है। ये जो आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये हम ही क्रिएट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, बाहर से नहीं आ रही है। ये बाहर का दिया हुआ कुछ नहीं है, इसके अंदर सब हमारा ही है। ये छोटी सी क्लिप है, इसे देख के समझते हैं किस तरीके से हम अपने लाइफ पार्टनर को इग्नोर करते हैं या कड़वाहट भरते हैं अपनी रिलेशनशिप में। ऑडिबल है तो बता देना। आवाज नहीं आ रही, वीडियो तो आ रहा है। आ रही है।
आप मेरे ख्याल से दोबारा जब शेयर करेंगे ना, यू हैव टू शेयर द साउंड एज वेल विपुल। ओके स्क्रीन शेयर जब आप दोबारा करेंगे ना, एक बार स्टॉप करके दोबारा शेयर करेंगे तो उसमें शेयर द साउंड एज वेल, आई थिंक ऑप्शन आती है उसमें। ओके ओके यस Yes, now it is coming. Hi. How was your reunion? Yeah, it was good. सही है, तुम्हारा तो फन है ना? ऐसे क्यों बोल रही हो? तो और कैसे बोलूं? सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर तुम्हारे पास टाइम है कि तुम देख भी लो। अरे तो मुझे बता देती, मैं नहीं जाता। अब मैं तुम्हारा माइंड तो रीड नहीं कर सकता ना। अच्छा, तो सब कुछ तो मैं ही बताती हूँ, तुम्हारे पास तो टाइम होता नहीं है कि तुम देख लो, राइट? और एक बात बताओ, अगर दोस्तों के साथ इतना फन है तो किसी एक के घर शिफ्ट कर जाओ, इस घर में वापस ही क्यों आते हो? तुम क्या बातें बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में हाँ, ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है और वैसे भी तुमसे बात करना बेकार है। सुनो, हम लोग सोच रहे थे ना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो तुमने अभी कुछ प्री प्लान किया है? गुड। मैंने ना पापा से भी बात की, तो कह रहे थे अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड में लगा लो, काफी सही है अभी। बट ना देन आई हैव अ कंफ्यूजन, क्योंकि मेरी उसके बाद नेहा से बात हुई, सो शी वाज लाइक कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो रिटर्न्स बहुत अच्छा है यार। या तो तुम्हें क्या लगता है हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स? आर यू इवन लिसनिंग? मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ सुना तुमने? क्या क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, तुम कुछ कह रही थी ना। लेट इट बी। हेलो, हाँ, वो संदीप आया था अभी। कौन संदीप? कितने संदीप को जानती हो तुम? पड़ोसी संदीप, और कौन? अच्छा हाँ, तो पैसे वापस करके गया है, तुमने पैसे दिए थे उसे। अच्छा वो, हाँ तो परसों जब वो घर आया ना। सुनो, मुझे तुम्हारी लव स्टोरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? पर तुम मेरी बात तो पूरी होने दो। मुझे सुनना ही नहीं है। तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा, बात खत्म। इन दिस स्टोरी द कपल लैक द। तो यहाँ पर एक दूसरे को सुनना नहीं, ब्लेम करना, ये सब चीजें हैं जो रिलेशनशिप को बिगाड़ती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है रिलेशनशिप में। बट मैं फिर कह रही हूँ, दिस इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है, इसे सही किया जा सकता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। आर्ट कैसे है, चलो फिर ये भी देख लेते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि वाकई ही रिलेशनशिप को अच्छा किया जा सकता है? यू कैन रेज योर हैंड। और कितने ही लोग ये मानते हैं कि नहीं, जैसी कर रही है ओके है, इसका कुछ नहीं हो सकता? किस साइड है आप? मानते हैं तो हाथ ऊपर कीजिए, नहीं मानते हैं तो हाथ नीचे रख कीजिए। ओके, थैंक यू। टॉप मंत्रा, अब मैं छोटे छोटे मंत्राज हैं जो आपको देने जा रही हूँ, जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए हैप्पी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। नंबर 1, लेट योर पार्टनर नो व्हाट यू फील। आप जो फील करते हो ना अपने पार्टनर के लिए, उसे बोलो, उसे बोलना शुरू करो, उसे बताना शुरू करो। हाँ, अगर आप उसे प्यार करते हो तो बोलो मैं तुझसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। नहीं बोलते हैं, यहीं पे शर्माते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। फीलिंग्स कैसी आ रही है, कहाँ, किस मोमेंट पे आप उससे खुश हैं, क्या आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं? आपके लाइफ पार्टनर को जानने का पूरा हक है और आपको बताना भी चाहिए। शो योर सपोर्ट, लव विद योर लाइफ पार्टनर, ये नीड है आपके लाइफ पार्टनर की। आपको प्यार देना होगा, सपोर्ट देना होगा, नॉट ओनली फॉर हस्बैंड, फॉर वाइफ, दोनों को सपोर्ट करना होगा एक दूसरे को। उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, बोलना होगा हम हैं तुम्हारे साथ, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, कोई भी दिक्कत आएगी हम हैं एक दूसरे के साथ। एक टास्क है आप लोगों के लिए, अपने फोन को हाथ में लो और ऐसे बैठ जाओ 2 मिनट के लिए।
कैन यू डू? अब ऐसे ही रखना है हाथ, मैं भी रखती हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, इतनी देर आप, कितनी देर तक आप इस तरीके से बैठे रह सकते हैं? कितनी देर? अनम्यूट करके बता सकता है कोई भी, कितनी देर? 2-5 मिनट, आधा घंटा, आपने 1 2 मिनट घंटा। बोला, 2 मिनट तो कर ही लेंगे। 2 मिनट, 5 मिनट, जब तक आधा हाथ ना घंटा, 1 थक जाए। घंटा? 1 दिन रह लोगे? 2 नहीं दिन? नहीं 2 दिन? नहीं 3 हाथ दिन? ठीक है, आप हाथ नीचे करके रख दो। अरे मुझे ये बताओ कि एक बात को दिल में लेके पूरी जिंदगी कैसे रह लेते हो? उसका बोझ होता है यहाँ पर दिल पर, उस बोझ के साथ कैसे आप अपने लव को एक्सप्रेस करोगे? कैसे लाइफ पार्टनर को प्यार करोगे? कैसे अपनी फीलिंग बताओ? तो सबसे पहले जो डाउट है उसे निकालो और पूछो। बात को मन में नहीं रखना है, डाउट पूछो। कोई भी बात आ रही है मन में नहीं रखनी, क्योंकि ये इस हाथ के बोझ से बहुत ज्यादा होती है जो आपको अपने लाइफ पार्टनर के पास जाने से रोकती है। अपने लाइफ पार्टनर से सीखो, उसे कभी नीचा मत समझो। प्रॉब्लम ये नहीं होती आपने गलती कर दी, एडमिट नहीं करते हैं। जो ईगो पार्ट, आई थिंक बनीत ने बोला था कि ईगो पार्ट होता है, हम एडमिट नहीं करते हैं। हम छोटे हो जाएंगे क्या? गलती की है तो मान लो ना कि अगली बार नहीं करेंगे, सॉरी। कहीं भी आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप को चेंज करना है, उसमें चेंजेस लाने हैं, ग्रो करना है, तो आपको अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने होंगे। प्रॉब्लम पे अटैक करो, पर्सन पे नहीं। अगर आपको उसकी, अपने लाइफ पार्टनर की किसी भी हैबिट से प्रॉब्लम है तो आप उससे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। तुम्हारी वजह से नहीं, प्यार से समझाना है। अगर मान लो कोई हस्बैंड है, सिगरेट पीता है, उसके सिगरेट की आदत नहीं है वाइफ को पसंद, तो बात बात में उसको बोलने की नीड नहीं है, प्यार से समझाएं कि इस सिगरेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप नहीं छोड़ सकते तो प्लीज टेस्ट करके आ जाए कीजिए, या फिर आप माउथ फ्रेशनर खा सकते हैं, या फिर आप सोने से थोड़ी टाइम पहले स्मोक कर लीजिए। पर्सन को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, सपोर्टिव हो लाइफ में, हर मोड पे सपोर्टिव हो, क्रिटिसाइज नहीं करो। और उनको भी, जब भी आप कोई काम करते हो तो उनको एक मौका जरूर दो अपने आइडियाज शेयर करने का। आखिर वो आपकी लाइफ पार्टनर है, उन्हें पूरी रिस्पेक्ट देनी है। डोंट टेक आउट द फ्रस्ट्रेशन। कुछ भी बाहर हुआ है आके वाइफ से निकाला, आपने इस चीज का एक देखा भी होगा, थप्पड़ मूवी अगर किसी ने देखी है तो, बाहर का गुस्सा वाइफ से निकालता है, उसका रिजल्ट कितना बड़ा होता है। और अगर आपको लग रहा है वाकई ही रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो प्रिपेयर रहिए अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए। छोटी छोटी चीजें भी बहुत रिजल्ट लाती हैं। डेवलप प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन। कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं कम्युनिकेशन डेवलप करने के रिलेशनशिप में? क्या लगता है? देखिए आज किसने रिलेशनशिप पे काम किया है? नोबडी। ठीक है, मैं बताती हूँ। वॉकिंग, वॉक स्टार्ट कीजिए। वॉक ऐसे नहीं स्टार्ट करनी है कि चल दिए वॉक पे, वाह हस्बैंड आगे आगे जा रहा है, वाइफ पीछे पीछे भाग रही है, नहीं। हाथ में हाथ लीजिए, बात कीजिए, महसूस कीजिए उस साथ को जो आपके दोनों का है। बातें करते जाइए प्यार से। खाने के बाद आप टाइम निकाल सकते हैं, मॉर्निंग में निकाल सकते हैं, साथ में खाना खाइए। और मैं तो कहूंगी पहला निवाला अपने लाइफ पार्टनर को खिलाइए। दिन में कुछ नहीं तो एक कॉल तो कर ही सकते हो ना, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, बट जुड़े रहिए। अपने इमोशंस, जो इमोशनल मेमोरीज है, शादी की एल्बम है, या कहीं गए थे हनीमून पे, या कहीं घूमने गए थे जहाँ साथ थे, उसे देखिए। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, और इस क्वालिटी टाइम में आपको अपनी फीलिंग उससे शेयर करनी है। एक दूसरे को छोटे छोटे गिफ्ट दीजिए, कोई बहाना नहीं होता गिफ्ट देने का, ऐसे ही भी गिफ्ट दिए जा सकते हैं। पूछेंगे क्यों गिफ्ट दिया? यार मैं खुश था, या मैं आज खुश थी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। क्योंकि जब कभी झगड़ा होता है ना तो मन में बुरी बातें ज्यादा आती हैं, बट अगर अच्छी कलेक्शन हमारे पास ज्यादा होगा ना बातों का, यादों का,
तो उस समय कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी झगड़ा होता है, वो बहुत जल्दी सुलझ जाता है। ग्रेटफुल रहिए, थैंक यू कहिए छोटे छोटे कामों के लिए। अपने रिलेशनशिप के लिए छोटी छोटी चीजें कीजिए, प्लान कीजिए, बाहर जाइए, घूमे फिरिए, कुछ भी कीजिए, साथ में हंसिए, प्रोग्राम देखिए, बट छोटी छोटी चीजें रिलेशनशिप में करनी बहुत जरूरी है। और लास्ट, कभी भी अपनी फैमिली को लव करना बंद नहीं कीजिए, चाहे लाइफ में कितनी ही कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि क्या है ना, प्रॉब्लम आती है चली जाती है, बट जो दिल में बातें कर जाती है ना, वो नहीं जाती। अब यहाँ एक बार देख लेते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से okay. communicate- तुम बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ, वेट। अच्छा सुनो, हम लोग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे ना, तो तुमने अभी कुछ डिसाइड किया है? नहीं, अभी तो नहीं किया। किसी से बात हुई क्या तुम्हारी? मेरी आज पापा से बात हुई, तो वो कह रहे थे अगर इन्वेस्ट करना ही है तुम्हें तो गोल्ड में कर लो ना, काफी सही है। हाँ सही है, आई थिंक दैट्स द सेफेस्ट बेट। बट देन मेरी नेहा से बात हुई एंड शी इज लाइक म्यूचुअल फंड्स में लगा लो, रिटर्न्स बहुत सही हैं। वो भी ट्राई कर सकते हैं। तुमने क्या डिसाइड किया? मेक सेंस, तुम एक बार गो थ्रू द मार्केट, देखो क्या चल रहा है। एक काम करते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं, फिर जो भी होगा फाइनलाइज कर लेते हैं। क्या बेटर है हमारे लिए? ठीक है, कूल। हेलो। हाँ, ये संदीप आया था। कौन संदीप? कितने संदीप को जानती हो तुम? पड़ोसी संदीप और कौन? अच्छा हाँ, तो पैसे वापस करने आया था। तुमने पैसे दिए थे ना उसे? अच्छा वो, हाँ एक्चुअली परसों ना संदीप को कुछ पैसों की ज़रूरत थी ना, उसके पास कैश था और उसका एटीएम कार्ड भी ख़राब था, तो तब वो लेके गया था। अच्छा ओके, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है, बिना पूरी बात जाने कंक्लूजन्स पे मत पहुंचा करो। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात, आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, एनीवे मैं आज शायद ऑफिस में थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तो तुम देख लेना। ओके बाय। ओके बाय। तो ये वो आर्ट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। पहले इनका वे ऑफ टॉकिंग क्या था कि झगड़े हो रहे थे, बात एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं थे, बट बात करने का तरीका बदला, सोच बदली, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी किया दोनों ने। अब बात करते हैं बॉलीवुड की कुछ हस्तियों की। किस लिए? क्योंकि सबसे ज्यादा डिवोर्स केसेस अगर कहीं मिलते हैं तो वो बॉलीवुड में। पर तब भी किस तरीके से अमिताभ जी, जो कि रेखा, आपको पता ही है रेखा जी को प्यार करते थे, उसके बावजूद किस तरीके से रिश्ते को संभाल रखा है। जानते हैं ये आर्ट को। शाहरुख खान, गौरी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म, उसके बावजूद कितने सालों का इनका रिश्ता है। तीसरा, सरप्राइजिंग काजोल, जिन्होंने एक शो में मतलब जो शो आया था एक कपिल शर्मा शो, उसमें खुद बताया था इन्हें कुकिंग नहीं आती, आज तक इन्होंने किचन में एंटर नहीं करा। अगर हम किचन में एंटर ना करें, बताइए क्या होगा। बट इन्होंने अपने रिलेशनशिप को बहुत प्यार से बांधा हुआ है, क्योंकि इन्होंने प्रायोरिटी डिसाइड की हुई है। एक्चुअली रिलेशनशिप से इन्हें चाहिए क्या, क्यों ये रिलेशनशिप में बनने जा रहे हैं, वो चीजें मिल रही हैं तो सब चीजें हम देख लेंगे। ओके, अब एक टास्क है आपके लिए, सबके लिए। पहले तो ये बताइए, किसी ने आई लव यू भेजा था तो उसका रिप्लाई क्या आया? आया या नहीं भेजा था? सुपर सुरेश जी, हैव यू सेंड द मैसेज टू योर वाइफ आई लव यू? हैव यू गेट एनी आंसर? हैव यू गॉट? नो, किसी ने नहीं भेजा, गलत बात है। भेजा था दीपक जी आपने? जी मैडम। आया रिप्लाई? आई लव यू जान। सो स्वीट, सो स्वीट। एंड गौरव जी, बनीत? मेरे तो साथ में ही बैठी है, सुन रही है, देख रही है। ओके, तो चलिए अब सब अपनी आंखें बंद करेंगे, और जो भी मैं बोलूंगी ना उसमें प्लीज कोई भी जो आपकी फेवरेट जगह है उसे विजुअलाइज करके अपने लाइफ पार्टनर को आपको वहां पे देखना है। 2 मिनट का है, प्लीज सब आंखें बंद कर लेना, और जो भी मैं बोलूंगी ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो आपको विजुअलाइज करना। ओके, रेडी? आई थिंक सुपर सुरेश जी को हिंदी में थोड़ी दिक्कत होगी, बट थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। ओके। गिले शिकवों से भरी जिंदगी,
तो जी ली अब तक, अब इस कश्मकश से बाहर आकर तो देखो। जिसे अपनी जिंदगी का हमसफर चुना है, उसे फिर से अपने गले लगाकर तो देखो। तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन मुझे बिताना है, ऐसा बोलकर हाथों में हाथ डालकर अपने साथ ले जाकर तो देखो। मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे दिल में जगह है तुम्हारी, माथा चूमकर ये एहसास कराकर तो देखो। ले जाओ कहीं दूर हम सफर को अपने साथ, उस खामोशी में उसके होने का एहसास अपने आप को कराकर तो देखो। आंखों में आंखें डालकर बोल दो हम हैं तेरे, हम सफर को अपने प्यार का विश्वास एक बार कराकर तो देखो। And you can open your eyes. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Vipul ji. Lovely nuggets shared by you. मजा आ गया। Thank you so much. ना सिर्फ मजा आया बल्कि ये भी आया कि सच में रिश्तों में सिर्फ मिठास ही नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में वो एकता भी होनी चाहिए, एकजुटता भी होनी चाहिए, जिससे कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। यहाँ पे हमें एक दूसरे के सिर्फ साथ में नहीं चलना है, एक दूसरे को थाम के चलना है। थाम के चलना है। जब तक हम एक दूसरे को थाम के नहीं चलेंगे, यकीन मानिए आप कुछ भी कर लें, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते ही रहेंगे। मैंने भी आज एक चीज सीखी है आप सबसे कि हम लोग रिश्तों को बहुत छुपाते हैं, शेयर नहीं करते, बताना नहीं चाहते, परिभाषा रख देना नहीं चाहते। या तो हम अपने रिश्तों पे काम नहीं करते हैं, या हमें आदत हो गई है अपने रिश्तों को उस तरीके से जीने की जैसे हम जीते आए। बिल्कुल ठीक ऐसा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैम इंडिया की तो मैं बात करूंगा कि जहाँ तक मुझे लगता है इंडिया में ना ये बड़ी प्रॉब्लम है। विदेशों में क्या होता है, लोग गुस्सा छुपाते हैं और प्यार जताते हैं। हिंदुस्तान में लोग गुस्सा दिखाते हैं, प्यार छुपाते हैं। प्यार छुपाते हैं, प्यार करते भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। उन्हें आदत हो गई है इसी तरीके से रहने की। दर ओके ठीक है ठीक है ठीक है, वाइफ का काम हो गया किचन में, हस्बैंड का काम हो गया दफ्तर तक, ऑफिस तक, दुकान तक, उसके बाद क्या? क्यों नहीं है प्यार? बिना प्यार के मुझे नहीं समझ में आता आप लोगों की या सबकी, हम सबकी लाइफ कैसे करती है। मेरी तो नहीं कर सकती, बहुत जरूरी है। मैं तो इतनी सी भी खुश होती हूँ तो कॉल लगाते कि ये हुआ ये हुआ। आज ही मैंने कभी सेशन अटेंड किया था, जैसे सेशन से पहले, उसमें एक चीज हमने बड़ी अच्छी सीखी, कोलैबोरेट रादर देन कम्पीट। लोग जो है ना, कोलैबोरेशन ही मिस हो रहा है, वही मिस इसी की वजह से सब केसेस बढ़ रहे हैं। वेरी ट्रू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके सेशन के साथ में। और गौरव जी एंड सुपर सुरेश, या ब्रो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फेलिसिटेट आवर गेस्ट। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? किसी का कोई भी क्वेश्चन है? यस यू कैन। I just like to say thank you so much Vipul ji for this amazing session, because sometimes हमें सब कुछ पता होता है लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं करते हैं। तो sometimes वो जो एहसास आपने कराया और जो वो एक interesting activity कराई, तो this is really interesting and I think I have seen this video long time back, but this is something need of an hour के हम लोग कई बार अपनी जिंदगी में इतना खो जाते हैं कि जो ये चीजें हैं बड़े important हैं। So thank you so much for sharing. Looking forward. Thank you, Gaurav. Thank you. And anyone? And good. Even if I could not able to understand Hindi, by the way, how you were passing on the great good energies, I can able to sense that value of relationship is always good. As Deepak brother told, the relation and ship. So that is very important to keep the life moving, sailing in a beautiful way. And how I can see always our GJ brother comes out with amazing energy. And it's not about just we need to have a love with our spouse or with our family member. The universe is our family and we can connect with each and everyone with beautiful heart and soul and pass on the great good energy. That is what very essential. If we change our state of mind, we can make our state to conquer. Everything will come amazing.
because state of mind is very important to see the beautiful state, beautiful country. So Very true. awesome. Keep passing on this great love energy everywhere where you go, and let's start appreciate one another and live a blissful life forever. Thank you, Vipul ji, for all Wonderful. your effort, and your presentation was amazing. We appreciate you for your valuable time. Vipul ji, please accept this small token of Thank appreciation you so from our much. end. Thank you so much. It is a pleasure for us to have you. Yeah. और हम Thank you. चाहेंगे आप दोबारा से एक बार फिर जल्दी से जल्दी हमारी ऑडियंस के साथ आएं। और मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि 28 अगस्त को दिल्ली में PSI कनेक्ट इवेंट हो रहा है, और उसके लिए एक एक्सेल शीट अभी हम एक वर्ड फॉर्मेट शेयर करेंगे, जिसमें उस एक्सेल शीट के अंदर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। और विपुल जी, वेरी ग्लैड टू नो दैट you are one of the speaker in that forum. We look Thank you forward so to much. hearing from you also. Thank you very much, दीपक जी। Thank you very much, मुझे नहीं पता everybody. मैं Please किस तरीके से थैंकफुल stay हूँ, safe. क्योंकि yes, you are giving such a wonderful platform कि as a speaker you are inviting me there. तो इस बार मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश में कनेक्ट हो सकूं, बट मतलब मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल कनेक्ट कर पाती हूँ, इसलिए मैं सुपर सुरेश जी को भी सॉरी बोलना चाहूंगी। वो कहीं कनेक्ट कर पाए होंगे, कहीं कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे, सो आई एम सॉरी सुपर सुरेश जी, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर देयर। रिश्तों में मिठास होनी जरूरी है, कनेक्शन अपने आप बन जाता है। बिल्कुल। तो आपने सब लोग कनेक्टेड हैं, आप चिंता मत कीजिए। और बहुत अच्छा लगा आप सेशन में आए, और आपसे हम लोगों ने बहुत वैल्यूएबल बातें सीखी, और मुझे उम्मीद है हम लोग जीवन में से उतारेंगे। और हाँ, शर्माएंगे भले ही, लेकिन घबराएंगे नहीं। शर्माना भी नहीं है, हम यही गलती करते हैं। आज मैं सबसे यही प्रॉमिस लेना चाहूंगी जाते जाते, अगर आपको सेशन 10% भी अच्छा लगा है ना, तो एक प्रॉमिस आपको मुझे देना पड़ेगा कि अगर कोई फीलिंग अपने लाइफ पार्टनर के लिए है ना, बोल। अगर आपको मैजिक देखना, बोल देना, आज ही बोलना। जो भी फीलिंग है ना, पागल कहेंगे कोई बात नहीं कि आज पागल हो गए हो, पी के तो नहीं आए हो, कोई बात नहीं, कहना शुरू करो रोज एक ग्रेटिट्यूड। सुपर सुरेश जी तो ग्रेटिट्यूड बहुत करते हैं, एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई नो। हमें ये अपनी लाइफ में भी लाना है। पानी का गिलास ही मिल जाए उसके लिए थैंक यू कहना शुरू करो, देखो लाइफ में कैसे चेंज की जाएगी। प्रॉब्लम यूं चुटकियों में भाग जाएगी। Thank you very much everyone for joining in today, and let us meet next Thursday with another amazing session which is on your way. So Okay. see you till we meet again. Bye from Deepak and bye Bye. from entire PSI community. Thank you Vipul ji once again. बाय बाय। Bye. Thank you Bye. everyone. Thank you for Thank you. everyone. Of yourself. Thank you everyone. Thank you.